Thank you so much for giving me an opportunity to interact with the young students. A very good afternoon or good morning to all of you. Myself, Dr. Gagan Varshne, working as a professor and chairperson BCA department at IMS Ghaziabad University Courses Campus. So it's a matter of great pleasure to me to have a brief introduction about Python or insights of Python rather, right? Uh, we are living in the world of information technology, where technology plays an important role. During this pandemic era, we are able to communicate it with the help of information technology. There are huge demands of computer professionals in organizations like Wipro, TCS, Google, Facebook, Capgemini, Deloitte, etc. And all these companies required, latest technology on which they can work upon. And here Python plays an important role. So Python is booming like anything nowadays. It is very much in demand. So let us start with Python. Uh, Let me start, right? Okay. So Python will discuss in this seminar or in webinar about some basics of Python and then some hands-on practices on Python, right? So let us start with Python. We'll discuss what is Python first of all. Then why Python and what are the features of Python? What we can do with Python or a usage of Python and companies using Python today. How we can install Python, and finally we will have a hands-on practice on Python. It may be in terms of a calculator or it may be in terms of arithmetic expression. And finally we'll discuss about some important data types which are using in Python. So let us start with the first slide. What is Python? So, Python is nothing, it is a programming language, a very high level programming language. So there are two types of languages basically occur in computers. Number one is called high level and number two is called low level. So when I'm talking high level programming language, it means what? It can easily be understood by the user who is using this. It may be English type language or it may be any type of language. And second is called low level language, which can only be understood by a computer. And we know that computer can understand only binary digits, that is in terms of bits 0 and 1. So Python is very high level programming language. So very high level means it has a facility to reduce the complexity. It means whenever I am writing anything on a Python editor, it can execute line by line, and it will take a less space as compared to other programming languages like C and C++, right? So we have n number of languages. हमारे पास C language होती है, C++ होती है, Java होता है, .NET होती हैं. उससे बहुत ही easy as compared to above language. So Python has been developed in 1991 by Rossum, University of Amsterdam in Holland. Now, why Python? What is the main feature of Python which separate Python from other languages like C, C++, Java? So number one, Python is interpreted, interactive and object-oriented programming language. Means interpreted means we can write any instruction in a single line and it will execute that particular line. It will give a result or output within a single line. Interactive, very easy to understand, and it also have a very unique facility of OOPS, which is known as object-oriented programming languages, like inheritance, encapsulations, and polymorphism. Then Python combines remarkable power with very clear syntax. जो उसमें syntax हम लोग use करते हैं बहुत easy होता है, उसको समझना आसान होता है as compared to other programming language, right? Then it has modules. It has a parts or pieces which is known as functions or modules with a very unique data types. It has some unique data type like list, like tuples, and like dictionaries. So we'll discuss these in this webinar, right? So
Next is what we can do with Python or Python usage. So the unique feature of Python is that, we can use Python in three parts. Number one, we can use it as a programming language. Either it may be a system programming, or it may be a graphical user programming, or it may be a database programming. This is first part, means we can use Python as a programming language. So first is called system programming, the programming which is easily understand or interact with hardware of the computer. Graphical user interface, which is easily understood by the user, and database programming in terms of storing of data, in terms of maintaining of data, or in terms of retrieving or accessing data or information. This is first part. We can use Python as a programming language. Second, we can use it as a internet scripting language. It means we can use it as like a HTML. We can use it as like a JavaScript. We can use it as like a VB script and so on. Like a scripting language, we can use it. And last but not the least, it is very much important. We can use Python as a data analytics. So this is, very highly demand in market nowadays, data analytics, because every company requires data analytics so that they are able to convert raw data into useful information. And the information which can be used for the purpose of any company or industry as per their growth of the product or marketing purpose. And last, there is one more part, which is apart from all these, we can also use Python for games, for image, and for creating robotic programming also. So, Python has three main features. It can be worked as a programming language, it can be worked as a scripting language, or we can use Python as a data analytics or data science. In data science, we can use it, right? The next is companies who are using Python today. There are a lot of companies which are using Python nowadays. Number one, Google. Google use कर रहा है. Google का काम क्या है? Web pages को search करने के लिए use करता है. Then we have some hardware companies like Cisco, Intel and IBM, जो इसको use करती हैं for testing, hardware testing के लिए use करते हैं Python programming को. And last but not the least, YouTube. If you want to share your videos or any types of services in terms of multimedia, so that has been used in YouTube with the help of Python. So a lot of companies using, even Facebook are nowadays using Python programming language to interact with their customers or users, right? Then how to install Python? So Python is number one, it is a freeware which is freely available on a particular website which is known as www.python.org. So where you can install two versions of Python. Number one is called 2.x, means 2.1, 2.2, 2.3, and 3.x means 3.1, 3.8. So latest version is 3.8.3 nowadays. So what are the major differences between Python 2.x and Python 3.x? So Python 2.x is basically status quo. It means it is an oldest method. And second is called Python 3.x, which present the future of the programming language, right? So how we can opt which particular version a particular user can use. So it is up to the project, basically on which project you are working for. Suppose if you are working independently, then it is recommendable. So you can use 3.x version, or if you are working on a project which is depend on other, it is safer to use 2.x version. So security wise, it is much more secure 2x version, 2.x version, and for larger projects where we are working independently, it is better to use 3.x version. Then this is important. Whenever we are installing Python, it will take hardly 30 MB in your memory at your computer when you are trying to install Python. So इसमें जिस पर हम काम करते हैं उसका shell का नाम है, उस editor का नाम है idle. Idle is basically integrated development environment which is available either for Windows, Linux or Mac operating system, right? So it is basically inbuilt editor where you can work upon. You can write your programs, you can write your codes, you can write your instructions
and you can execute over there. So, you may type any line on that editor, it will be executed by simply pressing enter. So let us see how it works. This is an editor, ideal editor, and you will easily find it out. There are 3 greater than sign are there, and then we have a cursor position. So here from this particular position, we are able to write anything. This is called ideal editor, right? Now, Python as a calculator or arithmetic expression. So let us discuss it with the help of an example. We can directly use ideal editor for arithmetic expressions and calculator. हम directly अब क्या करते हैं, पहुंचते हैं वहां पर जहां पर हमने काम करना है, और वो prompt है हमारा पास. So we have an idle prompt. This is an idle prompt. Cursor is moving here, so we can perform any arithmetic operations over here. Suppose if I want to add 2 numbers, so it will directly add 2 numbers on this prompt, right? So if I am writing 2 plus 2 and then I am entering, so we'll get a result 4 over here. It means we can use it as a calculator. We are using arithmetic operations to calculate the values here. Similarly, if I am writing 4 minus 2, so it will show the result as 2. We can also use multiplication sign and division sign as usual. So this is to be there. There are certain functions. Use calculator. I'm using 2 plus 1. Result will be 3, as I have shown you on a screen, live screen. And then if I am subtracting any number from any number, it will give a result 3. Say 4 minus 1, 3. Similarly, I can use multiplication sign. For multiplication sign, I will use star. मैं क्या use करूँगा? Star sign use करूँगा. और अगर मुझे डिवीजन करना है तो I will use a forward slash 12 divided by 3. So we'll get a result which is known as 4, right? Now, some arithmetic operations, we can also store any value in a variable. Say 1 is equal to n. It means what? We are trying to store 1 in a variable n, and we can directly print it onto the screen like this. We can also store a number in another variable. We can multiply on that particular variable by 2, and we can store it in another variable which is known as z. हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी नंबर को किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, और उस वेरिएबल में फिर किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और उसको भी हम थर्ड वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड, से फॉर एग्जांपल z. अब मुझे प्रिंट करना है z की क्या वैल्यू होगी? सो इट विल शो लाइक दिस. तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा z एंड आई विल गेट अ रिजल्ट विच इज नोन एज 2. सो लेट अस शो और डिस्प्ले विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल हियर. मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज हो सकती है. मैंने उस पर लिखा x is equal to 1, right? Say x is equal to 1 for example, and then enter. Now I am using another variable. Suppose variable name is z. Z is equal to 2 multiplied by x, right? Or capital X rather. I am using capital X here. So I would like to see what will be the result of z. So अगर मैं x करूँगा, केवल x करूँगा तो it will show 1. But अगर मैं z करूँगा तो it will show what? It will show 2 multiplied by x. It means 2 multiplied by 1. So it will show the result 2 here. So here we can perform n number of operations when we are with Python. This is to be there. This is there. And then similarly, there is another method. If you want to display the value with some message, say the value of z is equal to 2. So I can directly write down, either I can write down print z within parentheses, I can write down z and it will display the value as it is 2. But if I want the message, the value of z is equal to 2. So I can also do with the help of a print statement. Within double quotes, I can use value of z is equal to comma z. So it will show the result value of z is equal to 2. It means it will display the message on the screen. The value of variable z is equal to 2. So whatever we are writing within print statement,
in double quotes, or it may be a single quotes. It will display as it is with the variable name that we have given with comma sign. So here what I am given, the value of z is equal to z. It means it will show the same message value of z is equal to within double quotes. ये जो value of z है double quotes के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, ये as it is print कर देगा, और z की value जो हमारी यहाँ पर आई थी शुरू में उसको print कर देगा. So it will show the result in this format. So it is up to you whether you can directly display that variable with variable name, or you have to use print statement within parenthesis. या तो आप डायरेक्टली z को प्रिंट कर दीजिए या प्रिंट z कर दीजिए, दोनों ही केस में रिजल्ट सेम आएगा. लेकिन अगर आप प्रिंट के साथ कोई भी मैसेज डालना चाहते हैं डबल कोट्स के अंदर, वो जाएगा, वो मैसेज एज इट इज डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर विद द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल. This is to be there, right? Then this is arithmetic operations. Now there is a precedence or a priority of every operators that we are using in Python, as we have using in maths also. Bodmer's rule is there. तो ऐसे ही arithmetic expression के लिए भी Python में एक precedence है या priority set है, जो सबसे ज़्यादा है डबल स्टार का. डबल स्टार का मतलब है पावर, परसेंटेज का मतलब है रिमाइंडर देगा ये. डबल फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है इट विल गिव इंटीजर डिवीजन, और सिंगल स्लैश का मतलब है इट विल गिव द डिवीजन. मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, एंड प्लस इज एडिशन. तो सबसे ज़्यादा जो टॉप प्रायोरिटी होती है, प्रेसिडेंस होती है, वो किसकी होती है, डबल स्टार की होती है, ठीक है, पावर. तो लेट अस डिस्कस दिस. नंबर 1 अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस की जब मैं बात कर रहा हूँ, सो मैंने लिखा 8/3. सो 8/3, जैसे आपने पीछे देखा होगा डबल स्लैश क्या काम कर रहा है, it will give integer division. It will give integer division. Integer division मतलब it means it will give the question part of that value. 8 divided by 3. 2 is 6. So quotient is 2. So it will give the result 2. So let us see what I mean to say. I am writing it here. Say 7 divided by 3. So it will give the remainder part, which it will give the quotient part, that is 2.3.33. But if I want an integer part of a quotient, then I can directly use 7 divide /3. तो जैसे मैंने 7/3 करा, इसका मतलब क्या है, it will give 2. The quotient part which is not in decimals, it will provide it. Similarly, अगर मैं चाहता हूँ किसी भी नंबर को मैंने डिवाइड किया, say for example, same example ले रहा हूँ, 7 modulo I am using here, modulo sign is to be there. Yes, modulo 3, 7 modulo 3. Now the result will not be a quotient, the result will be a division, the remainder part. So 3 2 is 6. So 7 minus 6 is 1. So remainder is 1, right? So modulo gives remainder, while double forward slash division sign gives quotient part in integer values only, and single slash or forward sign will give the division part in floating point also, if it is to be there. Now there is one more operation that we have discussing about, say 2/3. So it means double star here, it means की power 2 की power 3. So 2 की power 3 means 8. So it will directly print the result 8. So this is, see, we can see, this is a one-line editor where we are writing a statement and it will give the result. Not only we can able to write anything onto the screen, but we are also right to print it with the help of simple variable name and with the help of print statement. हम डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट से भी इसको कर सकते हैं, जैसे कि हमने भी डिस्कस किया था, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, we are talking about arithmetic operations. It is to be there. Then 5 modulo 2, what will be the result? What will be the result if I am dividing 5 by 2? It will give, because we are using a modulo sign, so result will be 1. So 1 will be the remainder part will be there, which is known as 1. Now 2 की power 3, I have already discussed it. It will give a result 8.
So this is to be there. We can implement a very simple arithmetic operation by using Python. So that's why we call it as, we can use Python as a calculator with the help of arithmetic operations or arithmetic or mathematical functions. So what we have, suppose I want to find the result of 8 //3 plus 5 modulo 2. So within a parenthesis, it will execute the result 8 double modulo 3. We have already calculated it is 2, and 5 modulo 2 is 1. So 2 plus 1 result will be 3. So it will display result like 3. So you can directly implement all these commands on an idle prompt, which is by default prompt of a Python. ठीक है, पाइथन का बाय डिफॉल्ट जो एडिटर है वो आइडल है, लेकिन आइडल के अलावा भी बहुत सारे एडिटर्स हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम पर। वो आपके जुपिटर भी हो सकता है और वो आपकी नोटबुक भी हो सकती है पाइथन एनाकोंडा के अंदर, राइट। So it is very much easy to work on idle prompt. That's why we are using this, because this is basically for beginners purpose. Then next we have mathematical functions. No, now the Python will not support directly any mathematical function. Suppose if you want to find out the square root of any number, so you cannot write down square root of any number. You will get a result. इसका मतलब ये नहीं है कि आपने डायरेक्टली अगर आइडल प्रॉम्प्ट में एसक्यूआरटी और नंबर लिखा तो उसका रिजल्ट आपको शो कर देगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, you have to use a function which is known as mathematical function, which is known as math. So here what we have, a module which is known as math, which can perform n number of functions in it. Like square root अगर आपको find out करना है तो आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, आपको फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है किसी नंबर का तो आप फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, अगर आपको पावर निकालना है तो आप पावर भी निकाल सकते हैं किसी भी नंबर की। सो लेट अस सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे मैथ मॉड्यूल को अपने पाइथन के अंदर यूज करना है, सो मैथ इज अ मॉड्यूल, अ फंक्शन थ्रू विच वी आर एबल टू एग्जीक्यूट फंक्शंस लाइक स्क्वायर रूट, फैक्टोरियल, पावर एंड एटसेट्रा, राइट। So for example, if I want to use math, so I will use import math at idle prompt. Here we have import math at idle prompt, and then I can directly find out the square root of that particular number by using math.sqrt25. So let us see what I'm trying to say. This is to be there. So I am writing here import. You can write in small, lower cases or upper cases both. Import import and then math and then enter. Now I can find out square root of any number. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, math मॉड्यूल को यूज करना पड़ेगा with dot operator, then sqrt, and within parenthesis I will use any number, square root of say 2, 4 ले लेते हैं, ठीक है, and then enter. So we'll get a result which is known as 2.0, right? So this is to be there. There is another method to calculate it, that is there. So this is first method. Another method is you can directly use square root 25, but for that what you have to do, you have to write it down. Another syntax from maths import sqrt, right? So if you want to use this line at idle prompt from math import sqrt, you can now directly use sqrt25. So it will give a same result as above 5. So there are two options. It is up to you what you have to use. If you want to use directly import, you can use it, or from maths module, you can only use sqrt function or sqrt function. Similarly, if you want to calculate factorial of any number, so what you have to do, you can directly use here import math and then math dot in place of sqrt, you can directly use factorial of any number, say 2 या 3, okay, 2 या 3। तो जैसे ही मैंने लिखा फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 कितना हो जाएगा, 3 multiplied by 2 multiplied by 1, it means it will give a result 6 here 6 will be displayed. Similarly, अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट, अब मेरे को क्योंकि फैक्टोरियल यूज करना है तो आई विल यूज
फैक्टोरियल ओवर हियर, यहाँ पे मुझे पूरा फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा फैक्टोरियल ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर जिसका मुझे निकालना है, तो विल गेट द रिजल्ट। सिमिलरली वी कैन यूज पावर, 2 की पावर 3, वी कैन यूज डबल स्टार साइन डायरेक्टली ऑन आइडियल फॉर्म जो भी हमने देखा था, या अगर आप मैथ फंक्शन से भी यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट मैथ आप ऑलरेडी कर चुके हो एक बार। नाउ डायरेक्टली यू कैन राइट डाउन मैथ डॉट पावर, पावर के लिए हम यूज करते हैं POW एंड 2,3, 2,3 मीन्स 2 की पावर 3। लेट अस सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। So here I am writing here math dot POW, and within POW I am writing x comma 3, x comma y. X is 2, it means 2 की power 3, so it will give result 8, right? So you can calculate any number of functions by using this mathematical function or a math module. Besides that, there are some more functions which you can try, like seal, like floor. You can even find out the sine value. You can even find out the cosine value, and you can even find out the logarithm of any number with the help of these mathematical functions. So all these functions are inbuilt in a module which is known as math. Right? आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज you can like this video, and you can even subscribe this video with bell icon also. So, and you can tell me if you have any doubt, you can write it down in a text box. So at the end of the webinar we'll try to discuss those solutions, right? Then also Python can also deal with complex number. We know that complex number is divided into real and imaginary parts. So real and imaginary part may be real plus imaginary, right? It is to be there real and imaginary. So it should be like this. Example से समझते हैं हम लोग. Suppose this is a number, complex number 3 plus 4.0j. So imaginary number can be represented with the help of j. So from this number, I have to find out the real value and I have to find out the imaginary value. तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगा, z dot, I can write down z dot real. तो जैसे ही मैंने z dot real लिखा तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में से 3 plus 4j में से वो कैलकुलेट कर देगा, रियल वैल्यू निकाल के दे देगा, ठीक है। अगर मुझे कॉम्प्लेक्स वैल्यू चाहिए इसी तरह से तो आई विल राइट डाउन इमेजिनरी z dot image. Z dot image जैसे ही मैं करूंगा it will give the result which is known as 4.0, right? So we can also not only deal with simple mathematical functions, but complex numbers can also be dealt with the help of Python. We can easily identify the real part and imaginary part of any complex number. So for real part क्या करूंगा मैं, z dot real लिखूंगा, और अगर मुझे imaginary part चाहिए तो z dot imaginary लिखूंगा. So इस तरह से I can find out the real value and the imaginary value from a particular number which has to be given. Now, this is the very important part of Python programming language, the structure of Python program. Now, the Python program are composed of modules. जैसे अभी हमने बात करी थी मॉड्यूल, एक मॉड्यूल था हमारे पास मैथ्स, ऐसे ही बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं हमारे पास. TK इंटर होता है अगर मुझे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ डील करना पड़ता है. NumPy होता है अगर मुझे मैथमेटिकल फंक्शन, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शन के साथ डील करना पड़ता है. So programs in Python are composed of n number of modules. Now these module contains two things. Number one is called statement, जिसको हम instructions भी कहते हैं, और इसके साथ साथ हम बोलते हैं expressions, right? So program is divided into module, and module contains two things. Number one is called statement and number two is called expression. Now आप लोगों के समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, प्लीज अपना रेज हैंड कीजिए और अप्रिशिएट कीजिए, और सबकी चैनल को बीच में, राइट? And now third is called instructions and expressions, create and process object. So program is divided into model or composed of model. Model contains two things, statements and expression, or every instruction will create or process an object, right? So this is important part of a Python programming. Now next is what is object. अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर instruction and expression create and process objects. So object may be anything that exists in a word. Say for example, if I am writing object is basically
corresponding to certain memory region to which a unique memory address is associated. Say for example, we as a human being have a particular address. We lives in particular house, तो उसका house का number होता है. तो ऐसे ही हर एक object जो भी हम लोग Python में use करते हैं उसका memory में कोई ना कोई address होता है जहाँ पर वो store होता है. तो उसके साथ हम deal कर सकते हैं data, information about data और जो भी फंक्शंस उस ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं उसको हम डिफाइन कर सकते हैं. कैसे? फॉर एग्जांपल, इफ आई एम राइटिंग x इज इक्वल टू 1 2 3, सो 1 2 3 इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया है. उस वेरिएबल का नाम क्या है? x. सो x रेफरेंस ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन अ वेरिएबल विच इज नोन एज x. सो इट मीन्स ये जो 1 2 3 ऑब्जेक्ट है इट स्टोर इन मेमोरी समवेयर, और उसका जो नाम हमने दिया है वो क्या नाम दिया है? x दिया है, जो वेरिएबल का नाम है. अब मुझे ये चेक करना है कि ये कहाँ पर स्टोर हुआ है और किस पर्टिकुलर मेमोरी में किस स्पेस पर स्टोर किया है, तो वो भी हम कर सकते हैं. सो हियर व्हाट वी हैव, x reference to an object 1 2 3 or 1 2 3 points to an object, right? So how object can be created? Say I am taking another example, x is equal to 1.2, and I am writing here print x, so it will give the result 1.2. Of course, yes. Now if I am writing type x, so it will give what will be the object type. यानी ये क्या किस टाइप का, क्या इंटीजर टाइप का है या ये फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का है? फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि वो डेसिमल्स में भी डिस्क्राइब किया हुआ है. तो जैसे ही मैंने x वेरिएबल से पहले टाइप लिखा, तो क्या करेगा? इट विल गिव टाइप फ्लोट. इसने दे दिया ये फ्लोट टाइप का है. जो ऑब्जेक्ट 1.2 है इसका टाइप क्या है? इसका टाइप फ्लोट है. ठीक है, यानी डेसिमल्स में डिफाइंड है. और ये ऑब्जेक्ट मेमोरी में किस पर्टिकुलर लोकेशन पर स्टोर हुआ है, उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा ID ऑफ x. जैसे ही मैंने ID ऑफ x लिखा तो ये कोई भी रैंडम नंबर दे देगा. इसका मतलब क्या है? हार्ड डिस्क में किस पर्टिकुलर मेमोरी में किस प्लेस पर स्टोर हुआ है उसका उसने एड्रेस दे दिया है. सो दिस एड्रेस में वेरी, राइट? अगर मैं अभी काम कर रहा हूँ और मैंने 1 घंटे बाद काम किया, फिर मैं टाइप x कर रहा हूँ, तो ये वेरिएबल जो लोकेशन है वो चेंज हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन दैट. But every variable, every object which has been created is stored at a particular memory location, right? समझ में आ रहा है आप लोगों के? Now we can also use aliasing. Means it is possible to give more than one name to an object, which is known as aliasing. Say for example, if I am writing x is equal to 45, ठीक है, और मैं लिखता हूँ y is equal to 45. So if I want to find out what will be the location where these 45 variable is stored, so I can directly write down IDX. IDX का लोकेशन 135363888 है. अब मैं IDY करूँगा, उसका लोकेशन भी सेम होगा. ठीक है, 135363888. इसका मतलब ये हुआ कि दो भाई एक ही घर में रह रहे हैं. ठीक है, दो भाई एक ही घर में रह रहे हैं, उनका एड्रेस सेम हो सकता है. जो पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी हो गया, C++ हो गया, जावा में अगर आप इसको स्टोर करेंगे, उनके वेरिएबल को चेक करेंगे, तो उनका वेरिएबल का जो एड्रेस है वो डिफर करता है. बट पाइथन में यू कैन स्टोर द सिमिलर ऑब्जेक्ट टू डिफरेंट वेरिएबल्स. Similar object to different variables means x can live, x can have a variable 45, object 45, and y can have an object 45 also. And we can identify the location, किस particular location पर store हुआ है, उसके पहले हम ID लगा के check कर सकते हैं दोनों वेरिएबल का, राइट? सो और हम सिंगल लाइन एलाइजिंग भी इसमें कर सकते हैं. इट मीन्स I can also write it down, x is equal to y is equal to 45, which is not possible in C and C++. अगर आपको इसको डिफाइन करना है C और C++ में, तो आपको क्या करना पड़ेगा उस केस में? You have to write down variable on different lines, जैसे अभी हमने पहले किया था. So एक लाइन में भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. अगर मैं IDX निकालूंगा तो सेम होगा, और IDY निकालूंगा तो सेम. ID means the location where that particular variable is stored in memory. ठीक है, identification. This is to be there, right? Now data types in Python, this is the most important part of Python. Again, there are several types of
data types which is available in Python. Number one is called numbers. Numbers में हम इंटीजर पार्ट डिफाइन कर सकते हैं, लॉन्ग इंटीजर्स डिफाइन कर सकते हैं, फ्लोट डिफाइन कर सकते हैं एंड कॉम्प्लेक्सेस डिफाइन कर सकते हैं, राइट। सो इंटीजर हो गया, कॉम्प्लेक्स और नंबर हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट हो गया, लॉन्ग इंटीजर्स हो गया। कलेक्शंस में हम यूज करते हैं सीक्वेंस, जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 मेजर पार्ट्स में। नंबर 1 is called strings, number 2 is called tuples and number 3 is called list. And maps में हम use करते हैं dictionary. So the major part of data type which is used in Python are known as tuples, list, dictionary, along with strings and numbers. Numbers can be categorized into integers, long integers, floats and complexes, right? Then we have file, function, classes, and methods also, which is to be there, but we are not discussing in this particular series. We may have a number of series for Python if you are interested in that. So can I write a comment on a comment box? You can subscribe the channel and you can also like it accordingly. Now, categories of objects. This is important. Again, an important part of object. There are two terms which is commonly used in Python for objects. Number one is called mutable and number two is called immutable. तो जब मैं mutable की बात करता हूँ, mutable means what? It can immutable cannot be changed. Immutable means cannot be changed. एक बार आपने define कर दिया, आप उसको change नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसका नाम को चेंज नहीं कर पाएंगे, ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। बट म्यूटेबल क्या है? उसको हम चेंज कर सकते हैं, यानी ऑल्टर कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली हम अपने हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं। तो नंबर्स, स्ट्रिंग्स एंड टपल्स आर इम्यूटेबल, यानी इसको हम ऑल्टर नहीं कर पाएंगे, अपडेट नहीं कर पाएंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे। वाइल डिक्शनरीज इज म्यूटेबल, जो है वो म्यूटेबल है, जिसको आप चेंज कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर। सो ऑब्जेक्ट की दो कैटेगरी हो गई, म्यूटेबल दैट कैन बी ऑल्टर्ड, दैट कैन बी चेंज, एंड इम्यूटेबल मीन्स दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड and that cannot be changed. Now, types and categories of objects. So, अगर मेरे को किसी भी ऑब्जेक्ट को जो मैंने क्रिएट किया है अगर डिलीट करना है तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। सो से इफ आई एम राइटिंग x इज इक्वल टू 1 2 3, राइट, अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं क्या लिखूंगा? आई विल सिंपली राइट डाउन डेल। ये तो प्रिंट कर दिया मैंने वैल्यू के 1 2 3 आ रही है। अब मुझे इसे डिलीट करना है तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? वेरिएबल से पहले लिख दिया डेल, DEL डेल, एंड देन एंटर। जैसे ही मैंने एंटर किया और उसके बाद वैल्यू x को प्रिंट करने की कोशिश करी, क्योंकि अब हम इसको डिलीट कर चुके हैं, तो इट विल नॉट शो एनी रिजल्ट। इट विल शो कि ट्रैक बॉल मोस्ट रिसेंटली कॉल लास्ट, ये जो फाइल है एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इस फाइल नेम एरर बिकॉज नेम x इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके वेरिएबल x में डाला था उसको हमने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। तो सिंपली आई कैन राइट डाउन डिलीट। अगर यही काम आपको C और C++ में करना होता तो आपको उसके लिए पूरा एक प्रोग्राम बनाना पड़ता। वो प्रोग्राम आपका 4 लाइन का, 5 लाइन का, 10 लाइन का हो सकता है, जिसमें जबकि पाइथन में आप ये काम एक ही लाइन में कर सकते हैं। वट एवर वेरिएबल ऑब्जेक्ट यू हैव क्रिएटेड एंड स्टोर इन अ वेरिएबल, you can directly delete it with the help of a command which is known as del command, right? Now input, this is again important. अभी तो हमने लिखा x is equal to 1 2 3, तो जैसे ही मैंने प्रिंट लिखा सो मेरे पास क्या हुआ? 1 2 3 डिस्प्ले हो गया। अब मैं यूजर से एंट्री चाहता हूँ। आई वांट व्हाट? एंट्री फ्रॉम यूजर साइड, कि यूजर एंट्री दे, तब वो नंबर, जो भी एंट्री दे वो नंबर प्रिंट हो, वो चेंज हो, राइट। तो उसके लिए हम यूज करते हैं अनदर कमांड विच इज नोन एज इनपुट। तो इनपुट विद इन पैरेंथेसिस, जो भी आप मैसेज देना चाहेंगे दैट हैज टू बी डिस्प्लेड। जैसे हमने प्रिंट के साथ डबल कोट्स के अंदर कोई भी मैसेज दिखा था, ऐसे इनपुट के साथ भी हम लिख सकते हैं। बट इनपुट के साथ क्या होगा? कर्सर आगे आ जाएगा, उस कर्सर पर आप वैल्यू डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं? आई विल जस्ट शो यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। से फॉर एग्जांपल, yes, this is to be, let us see. See, if I am writing here, any variable, and then I am writing here input, right? And I am writing here enter your name, okay, and then
colon and then I'm close it. So when I enter this, वो आपसे पूछेगा जो भी आपने डाला है, enter your name, और आपने देखिए जो कर्सर है वो ब्लिंक कर रहा है यहाँ पर. अब जो भी आप नेम देंगे वो कहाँ चला जाएगा? That has to be stored in a variable which is known as x. तो मैंने यहाँ पे दिया सपोज नेम राज एंड देन एंटर. तो अब क्या हुआ, ये जो राज है वो वेरिएबल x के अंदर चला गया. मुझे देखना है कि x के अंदर वो पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, तो आई विल राइट डाउन डायरेक्टली x या प्रिंट x आप दें. सो इट विल शो राज. सो सिंगल कोट्स में दिया, इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रिंग है, राइट. सो स्ट्रिंग के लिए हमें डबल कोट्स देना पड़ता है, लेकिन अगर मुझे कोई नंबर एंटर कराना है तो उसके लिए मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इस इनपुट को इन द वैल्यू ऑफ इंटीजर वैल्यू, अदरवाइज इट विल शो द रिजल्ट एज अ स्ट्रिंग, राइट. सो ये एग्जांपल मैंने बताया था, नेम इनपुट व्हाट इज योर नेम. सो मैंने डाल दिया अजय, देन व्हाट वी हैव प्रिंट नेम, सो इट विल शो रिजल्ट अजय. सिमिलरली अगर मुझे मार्क्स एंटर करने हैं तो मार्क्स स्ट्रिंग नहीं होता है, कैरेक्टर्स में नहीं होते हैं मार्क्स, मार्क्स होते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज में, इंटीजर्स में. तो मैंने यहाँ पर इनपुट से पहले INT भी लगाया है. INT क्यों लगाया है? ताकि वैल्यू के अंदर इंटीजर वैल्यू जाए, ना कि स्ट्रिंग. यहाँ पर जब ये डिस्प्ले हो रहा था तो डिस्प्ले हो रहा था सिंगल कोट्स में राज, ये एक्चुअली डिस्प्ले सिंगल कोट्स में हुआ. सिंगल कोट्स का मतलब क्या है, ये पूरा एक स्ट्रिंग है. तो मैंने जैसे ही डाला एंटर मार्क्स 50. नाउ 50 इज नॉट अ स्ट्रिंग, दिस इज अ नंबर, न्यूमेरिक वैल्यू, इंटीजर. सो जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा, सो इट विल शो प्रिंट वैल्यू, इट विल शो 50. अदरवाइज अगर मैंने यहाँ पर INT नहीं लगाया होता तो ये 50 से पहले सिंगल कोट्स लगा देता, और सिंगल कोट्स का मतलब क्या है, ये स्ट्रिंग हो गया है. तो स्ट्रिंग को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, स्ट्रिंग को हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं. तो अगर मैं लिखता 50 + 50 100 होना चाहिए, बट 50 + 50 करेंगे तो वो दिखा देगा 50 50. इट मीन्स वो कॉन्कैटिनेट कर रहा है. स्ट्रिंग हमेशा कॉन्कैटिनेट होते हैं, जुड़ते हैं, अपेंड होते हैं, राइट. This is to be there. Now next is strings, जिसकी हम बात कर रहे हैं. So strings are immutable, यानी it cannot be changed or cannot be altered. So say for example, if I am writing S, hello, how are you? This is a string. It may be in a single quotes or it may be in double quotes also, right? So let us discuss it with the help of an example. S एक variable है जिसके अंदर मैंने ये पूरा string डाला है. String का नाम क्या है? Hello, how are you? Now S अगर मैं प्रिंट करूंगा तो ये पूरा प्रिंट कर देगा हेलो हाउ आर यू. अगर मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग दिखाना है तो एम्प्टी स्ट्रिंग होगा सिंगल कोट्स विदाउट हैविंग एनी वैल्यू इन इट. सो एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं. स्ट्रिंग्स कैन बी इंडेक्स एंड स्लाइस्ड. इसका मतलब क्या हुआ, सपोज मैंने स्ट्रिंग लिया हेलो हाउ आर यू. नाउ सी, चेक इट आउट. द वैल्यू ऑफ H इज all the string is stored in a memory at particular location. तो H 0 पोजीशन पर है, E 1 पोजीशन पर है, L 2 पोजीशन पर है, सेकेंड L 3 पोजीशन पर है, O 4th पोजीशन पर है, और 5th पोजीशन पर हमारे पास नल है, स्पेस ब्लैंक. 6th पोजीशन पर हमारे पास H है, 7th पोजीशन पे हमारे पास वो है, एंड सो ऑन सो ऑन. It means every string is stored at a particular location with the index value. So index value of H is 0, index value of E is 1, index value of L is 2, index value of next L is 3, index value of O is 4, and index value of this space is 5, right? So this is called indexing, right? Now we can also use slicing with the help of a string. कैसे? Let us check. अगर मैंने S और ये स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिखा तो 0 पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है स्ट्रिंग का? कौन सा वैल्यू है स्ट्रिंग का? H, कैपिटल H. सो जैसे ही मैंने इसको करा तो इट विल शो H. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को 0 से लेकर वैल्यू 0 से स्टार्ट हो और 5 तक रहे, तो उसके लिए 0 पे कोई पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है? H, 1 पे E, 2 पे L, 3 पे L, 4 पे O. नाउ 5th पोजीशन पे मेरे पास क्या है? नल. तो 0 कॉलन साइन एंड 5 मीन्स 0 to 4th लोकेशन पर जो भी करेक्टर होगा स्ट्रिंग का वो डिस्प्ले हो जाएगा. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 0 कॉलन 5 मीन्स 0 से लेकर 4 तक जो भी करेक्टर है, 5 इसमें एक्सक्लूडिंग है. ठीक है. तो जैसे ही मैंने इसको किया और एंटर किया, सो इट विल डिस्प्ले हेलो. देखिए H की पोजीशन 0, E की पोजीशन 1, 2, 3 एंड 4, यानी 0 से लेकर 4 तक जितने भी करेक्टर्स हैं वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे. अगर मैं यहाँ लिखता 0 कॉलन 4,
तो वो प्रिंट करता 0 से लेकर 3 तक वैल्यू, तो वो क्या होती है HELL, केवल हेल, नॉट हेलो। सो जो भी आप वैल्यू दे रहे हैं, दिस 0 इज इनिशियल वैल्यू एंड दिस 5 इज कॉल्ड फाइनल वैल्यू, बट it will not display final value, it will display one value less, which is less than final value. ठीक है। Now 5:6 के हिसाब से क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, कोई बताएगा? चैट बॉक्स में, टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिख दीजिए इसके बारे में, क्या होना चाहिए इसका आउटपुट। 5:6, if you have any query you can ask me at the end, right? 5:6, 5th पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है हमारे पास? स्पेस, नल, ये स्पेस है, नल वैल्यू है, और 6 पे हमारा ये है। तो 5 से स्टार्ट हो और 5 पे ही खत्म हो जाए, इसका मतलब ये 6 वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। स्टार्ट विद 5 एंड एंड विद 5, तो इट विल शो द वैल्यू विच इज नोन एज नल, ये नल वैल्यू शो कर देगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अगर मैं लिखता हूं :5, :5 का मतलब क्या है? 0 से स्टार्ट करेगा और 4th वैल्यू तक जाएगा। 5 का मतलब क्या है? जो ये 5 है लास्ट वाला, इसका मतलब है लास्ट वैल्यू से एक कम, यानी जो इसका आउटपुट था वही इसका आउटपुट आएगा। लेट अस सी, हेलो, इट विल गिव अ रिजल्ट व्हिच इज नोन एज हेलो। अगर मैं 0 लिखता हूं या नहीं लिखता हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो इनिशियली स्टार्ट करेगा, बट कॉलन साइन होना चाहिए हमारे पास। और ये सब किसमें होगा? दैट इज टू बी देयर इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, राइट? देन व्हाट वी हैव नाउ 6 कॉलन का क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? यानी 6 से स्टार्ट हो और एंड में कुछ भी हो, कितना जितना बड़ा स्ट्रिंग है वो सारा आ जाए। तो 6 पोजीशन पे हमारे पास कौन सा कैरेक्टर है? कैपिटल H। यहाँ से स्टार्ट हो और एंड में जहां तक खत्म हो रहा है वो सारा स्ट्रिंग डिस्प्ले कर दे। देखिए हाउ आर यू। तो मैंने जो एंड है, कॉलन के बाद मैंने कुछ नहीं लिखा है। अगर मैंने कॉलन के बाद कुछ नहीं लिखा है तो वो एंड तक जो भी कैरेक्टर होगा वो पूरा डिस्प्ले कर देगा। ठीक है। If you like this, then you can please like a comment on a comment box, like this, and subscribe the channel और bell icon जरूर दबा दीजिएगा please. Now there is one more notation for slicing. Simple, we can write down colon. So if I am writing colon, so it means that initial value is 0 and final value is whatever will be there in a string, it will display. It means starting with 0 or ending with the last value जो भी उसकी होगी, it will display the complete string. Hello, how are you? So this S colon is basically equivalent to capital S. अगर मैं capital S भी लिखता हूँ तब भी वही आएगा, hello, how are you। और अगर मैंने लिखा capital S स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर colon साइन, तो भी वो पूरा डिस्प्ले करेगा। Choice is yours, right? So it means that indexing, any positioning of character within a string is possible, and we can also able to cut or slice the string as per our requirement. So if this you have to do in any other programming languages like C or C++, उसके लिए आपको पूरा प्रोग्राम बनाना पड़ता है, और वो प्रोग्राम आपका 10-15 लाइन से कम का नहीं होता है। इसमें ऐसी कोई जरूरत नहीं, यू कैन डायरेक्टली राइट इट डाउन ऑन अ सिंगल लाइन। ठीक है। नाउ स्ट्रिंग्स का आगे चल रहे हैं। नाउ स्ट्रिंग्स कैन बी कॉन्कैटिनेटेड। अगर मैं प्लस का साइन लगा रहा हूँ या मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज कर रहा हूँ स्ट्रिंग में, इसका मतलब क्या है? वो कॉन्कैटिनेट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने लिखा S इज इक्वल टू हेलो, राइट, एंड आई एम राइटिंग S प्लस S, so it will give hello, 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 hello. It will concatenate two string hello and hello. Similarly, if I am writing 2 multiplied by S, so S is what? Hello. 2 multiplied by S, it will give again hello, hello, double, repeat it. So now this is a very important part of a string. We can unpack a string accordingly. Unpacking का मतलब क्या है? Suppose मेरे पास एक string है AB, इस string को मैंने variable S में store किया है, ठीक है, यानी S reference to this string और AB is allocated to this string S. Now मैं चाहता हूं इन दोनों इस दो वेरिएबल को दो डिफरेंट वेरिएबल्स में भी स्टोर कर सकता हूं। तो इस स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास 2 कैरेक्टर्स हैं, उतने ही आपको वेरिएबल्स देने पड़ेंगे डिफरेंट टाइप्स के। मैंने यहाँ ले लिया x, y। मैंने यहाँ पे क्यों यूज किया मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं लिखता हूँ s असाइन टू x, y, इसका मतलब क्या है? नाउ s की वैल्यू x और y में चली गई। कौन सी वैल्यू चली गई? a वैल्यू चली गई x में और b वैल्यू चली गई y में। इसका मतलब क्या है? अगर मैं प्रिंट x करता हूं तो अब a प्रिंट करेगा x के लिए। देखिए क्या हुआ, a आ गया रिजल्ट,
और अगर मैं प्रिंट करता हूँ y को, तो अब इसमें क्या प्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, वैल्यू प्रेजेंट करेगा b। तो उसका मतलब क्या है, वी आर एबल टू पैक और अनपैक स्ट्रिंग एज पर आवर रिक्वायरमेंट, बट द नेसेसरी कंडीशन इज दैट कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स रिमेन सेम, यानी ये स्ट्रिंग के अंदर जितनी कैरेक्टर्स हैं उतने ही कैरेक्टर्स को आप असाइन कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते x इज इक्वल टू एस या x कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू एस। इसमें दो कैरेक्टर्स हैं तो दो ही आप वेरिएबल्स लेंगे, x कॉमा वाई। सो यही मैंने लास्ट में लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स नीड्स टू बी द सेम और एल्स एन एरर मैसेज विल बी जनरेटेड। अगर आप यहाँ पर कम ज़्यादा कर देंगे इसकी वैल्यू से, इनके ए और बी से, कैरेक्टर से, तो वो उसमें एरर मैसेज शो कर देगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कॉल्ड लिस्ट। सो लिस्ट इज जस्ट लाइक एन, अगर आप लोगों ने सी या सी प्लस प्लस पढ़ा हो किसी ने, तो एरे होता है। लिस्ट इज जस्ट लाइक एन एरे। एरे मीन्स इट इज बेसिकली यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज ऑफ सेम टाइप, बट लिस्ट के केस में हम डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। सो लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब मैंने बताया था, तो दो टर्म्स बताई थी, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या था कि हम जो भी वैल्यूज हैं उसको हम ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और इम्यूटेबल का मतलब क्या था कि जो भी वैल्यूज हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते। सो लिस्ट इज म्यूटेबल एंड heterogeneous means different types of values can be stored in a list। ठीक है। तो लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी आर यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये देखिए, मैंने एक लिस्ट लिया, एक वेरिएबल लिया l, और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने वैल्यूज को स्टोर किया है। यहाँ पर मैंने देखिए स्ट्रिंग भी स्टोर किया है और नंबर, इंटीजर वैल्यू भी स्टोर किया है। आप चाहें तो उसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज भी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। बट इसकी पहचान क्या होती है लिस्ट की, कि जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो लिस्ट कहलाएगा। अगर मुझे एम्प्टी लिस्ट प्रेजेंट करनी है तो मैं केवल ओपन एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट कर दूंगा। ठीक है। सो लेट अस सी लिस्ट बीइंग म्यूटेबल, इसको ऑल्टर कर सकते हैं, म्यूटेबल है, ऑल्टर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं एलिमेंट्स। सो एक मैंने लिस्ट लिया, चेंज कर दिया, इसमें मैंने अब सारी तरीके की वैल्यू रखी हुई है। हेट्रोजीनियस नेचर मतलब क्या, इंटीजर वैल्यू भी है इसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी है, और इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, 1+3j, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और हेलो मेरा क्या है, ये स्ट्रिंग है। तो वी हैव यूजिंग स्ट्रिंग इन इट, कॉम्प्लेक्स नंबर इन इट, और मैंने 12.9 फ्लोटिंग वैल्यू भी रखी है इसमें, और इंटीजर वैल्यू 12 भी रखी है, से फॉर एग्जाम्पल। सो अगर मैं केवल एल लिखता हूँ तो इट विल डिस्प्ले कि ये आपका लिस्ट पूरा डिस्प्ले हो जाएगा। नाउ अगर मेरे को पर्टिकुलर एलिमेंट इस लिस्ट का डिलीट करना है, तो डिलीट के लिए मैंने कमांड बताया था डेल। मान लीजिए मेरे को इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस लिस्ट में से हटाना है, तो आपको मालूम है जैसे अभी हमने स्ट्रिंग में पोजीशंस देखी थी, ऐसे ही लिस्ट के अंदर हर एक एलिमेंट की पोजीशन है। 12 0 पोजीशन पर, 12.9 सेकंड 1 पोजीशन पर, 1+3j सेकंड पोजीशन पर, हेलो मेरा थर्ड पोजीशन पर, यानी 0 to 3। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 4, बट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 3। तो अगर मैंने लिखा del L2, L ये है इस लिस्ट में से सेकंड पोजीशन पर जो भी एलिमेंट है, 0 1 2, सेकंड पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, 1+3j, ये वाला जो एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। देखिए मैंने L किया एंड देन उसके बाद डिस्प्ले किया, तो ये जो लिस्ट में वैल्यू थी 1+3j डिलीट हो गई। ठीक है। दिस इज टू बी देयर। सिमिलरली क्योंकि हम इसे ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो मैं किसी भी नंबर को, मान लीजिए पहला नंबर इसको मेरे को चेंज करना है, 12 से 24 करना है, या मल्टीप्लाई करना है इसमें 2 का, तो मैं उसकी पोजीशन डाल दूंगा। ये किस पोजीशन पे है, 12 0 पोजीशन पर, ये 0 पोजीशन है इसकी, ये 1 पोजीशन हो गई, अब इसकी 2 पोजीशन हो गई। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, पोजीशन 0 1 एंड 2। L0 पोजीशन पर जो भी एलिमेंट आपका रखा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 12, एंड देन फाइनली लिस्ट को डिस्प्ले कीजिए, तो इट विल चेंज। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट लिस्ट कैन बी ऑल्टर, लिस्ट कैन बी चेंज। उसमें ऐड भी कर सकते हैं हम, रिमूव भी कर सकते हैं। डिलीट हमने डिलीट करना बताया, डिलीट हो गया था इसमें। ठीक है। सो 24 12.9 and hello, it will be displayed in place of 12 12.9 and hello. Now next, to add an element to a list, अगर मुझे कुछ ऐड करना है लिस्ट में एलिमेंट, अभी हमने ऐड करना, उसमें ऐड करना सीख लिया, डिलीट करना हमने सीख लिया, मल्टीप्लाई करना हमने सीख लिया। अगर मुझे कोई नया एलिमेंट ऐड करना है वो कैसे करूंगा, उसके लिए हम यूज करेंगे अपेंड मेथड।
मान लीजिए एक लिस्ट लिया, जिस लिस्ट में हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक कंप्यूटर और एक मैथ है, ठीक है, और इसको मैंने वेरिएबल सब्जेक्ट में स्टोर किया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि फिजिक्स और ऐड करना है इसमें, तो मेरे को ऐड करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम क्या है, सब्जेक्ट, फिर आई विल यूज डॉट, ठीक है, एंड देन अपेंड, और जो भी आपको ऐड करना है वो आपका कर्व ब्रैकेट्स में आएगा, फिजिक्स। जैसे मैंने इसको लिखा और उसके बाद सब्जेक्ट को फिर डिस्प्ले किया, तो इट विल शो that physics is to be added in a list. So that's why list is mutable in nature. It means we can add it, we can subtract it, we can delete or even update the values within a list. This is to be there. Similarly, जैसे अभी हमने strings को इंडेक्स किया था, स्लाइस किया था, वैसे आप लिस्ट को भी कर सकते हैं। सेम मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4, ये 0 पोजीशन पे है, ये सेकंड 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे। ये आप चेक करके देखिएगा। L0 पे क्या आना चाहिए, व्हाट विल बी द रिजल्ट। अगर आपको आता है तो उसको लिखिए, उसमें चैट बॉक्स पे लिखिए, टेक्स्ट बॉक्स पे लिखिए। L0 पे क्या आना चाहिए, L0 पे कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट, सो इट विल शो 1, राइट। सेकंड, सिमिलरली 0 to 2, 0 to 2 का मतलब क्या है, 0 से स्टार्ट हो और 2 पे खत्म ना हो, एक पहले खत्म हो, फर्स्ट लोकेशन पे खत्म हो, यानी 0 और 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट रखे हैं। 0 और 1 पोजीशन पे कौन कौन से एलिमेंट रखे हैं, 0 पे 1 है और 1 पर 2 है, तो इट विल डिस्प्ले 1 and 2। सेम जैसे हमने स्ट्रिंग के साथ डील किया था, वैसे हम इस लिस्ट के साथ भी डील कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। सेम जो हमने स्ट्रिंग में किया वही इसमें कर रहे हैं। नाउ लिस्ट को हम सॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सॉर्ट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, मान लीजिए कोई लिस्ट है मेरे पास, मैंने एक लिस्ट लिया 5 2 4 1। अब मैं चाहता हूँ उसके जो एलिमेंट्स हैं वो एक ऑर्डर में आ जाएं, एक ऑर्डर में आ जाए, यानी असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। तो असेंडिंग ऑर्डर में आने के लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, एल डॉट सॉर्ट। देखिए एल डॉट सॉर्ट एंड ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, लेट अस चेक इट। मैं जो बोल रहा हूँ, मैंने एक लिस्ट लिया एल और इसमें एलिमेंट लिए से 2 4 1, राइट। और मैं इसको एंटर कर रहा हूँ, मुझे सॉर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो आई विल राइट डाउन सॉर्ट and then open close parenthesis and then I will print it. So 1 2 4, so ascending order में हमारे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। नाउ अगर मुझे इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है देन, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, मेरे को सेम लिखना होगा एल डॉट सॉर्ट। पहले तो उसको देख लेते हैं, जैसे मैंने एल किया 1 2 4 5, अभी हमने देखा। अगर रिवर्स में करना है तो हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। L dot sort, इस पैरेंथेसिस के अंदर आई हैव टू राइट इट डाउन, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। जैसे मैं लिखूंगा आई विल गेट एंड आई विल डिस्प्ले द रिजल्ट। सो अब जो एलिमेंट्स मेरे पास लिस्ट के हैं वो किस ऑर्डर में आ गए, दैट इज टू बी देयर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज 5 4 2 and 1, राइट। दिस इज टू बी देयर। नाउ नेक्स्ट इज टपल्स। So we are dealing with 3 types of data types. Number 1, list. List के लिए हम क्या यूज करते हैं, square brackets. Now second is called tuples. Now tuple is basically immutable. It means it cannot be altered, it cannot be changed. While list जो हमने पहले डिस्कस किया था वो mutable है. So how we can identify this is tuple or a list? Only the notation. लिस्ट के लिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया था, इसके लिए हम यूज करेंगे कर्व ब्रैकेट्स। ये देखिए कर्व ब्रैकेट्स, जो एनीथिंग रिटन विद इन अ कर्व ब्रैकेट्स इज टू बी डील विद टू बी डील विद टपल्स ओनली। मैंने यहाँ पे टी टाइप टी लिखा, कैसे पता चलेगा ये टपल है कि नहीं, मैं टाइप डाउन मैं लिख सकता हूँ टाइप ऑफ टी। ऐसी लिस्ट से पहले भी मैं लिख सकता हूँ टाइप ऑफ टी। जैसे ही मैं टाइप ऑफ टी लिखूंगा तो ये बता देगा ये जो आपका टाइप है ये टपल टाइप का है। ये जो आप, क्योंकि ये हमसे हम आसानी से पहचान भी सकते हैं इसको कि हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिया है और हमने यहाँ पर क्या लिया है, हमने यहाँ पे कर्व ब्रैकेट्स लिए हैं, तो ये मेरा टपल है, ठीक है। प्रिंट कर सकता हूँ, वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए ये वैल्यू प्रिंट करनी है तो उसके लिए सेम रहेगा। आई कैन डायरेक्टली राइट डाउन टाइप T2। ये कौन सा पोजीशन है, 0 पोजीशन, 1 पोजीशन एंड 2 पोजीशन। तो सेकंड पोजीशन पर जो भी एलिमेंट है वो टाइप हो जाएगा। उसका टाइप क्या है, तो एक टाइप है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स में शो कर दिया। अगर मैं यहाँ पे लिखता T1
तो यहाँ पर दिखा देता कॉम्प्लेक्स का स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ करता T1 ये वाला 1 तो ये दिखा देता इंटीजर नंबर, ठीक है। अगर मैं टाइप यूज नहीं करता तो T2 पे जो एलिमेंट था वो डिस्प्ले करता, यानी 6 + 3j। अगर मैं टाइप यहाँ पे यूज नहीं करूँ, अगर मैं केवल यूज करूँ T2, इट मीन्स इट विल शो 6 + 3j, ये एलिमेंट आपको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिक्शनरीज। सो डेटा टाइप्स में पहला लिस्ट हमने देखा, दूसरा टपल्स और तीसरा हम देख रहे हैं डिक्शनरी। नाउ डिक्शनरी जो है वो मैप कैटेगरी का एक ऑब्जेक्ट है। it is much more powerful as compared to list and tuples that we have defined. Now, dictionary is also mutable. तो 3 मेजर डेटा टाइप जिसकी हम बात कर रहे थे, एक लिस्ट की बात कर रहे थे, एक टपल की बात कर रहे थे और डिक्शनरी की बात कर रहे थे, जिसमें लिस्ट और डिक्शनरी तो म्यूटेबल है, वाइल टपल इज इनम्यूटेबल इन नेचर, ठीक है। सो डिक्शनरी के अंदर 2 चीज होती हैं, एक होता है की वैल्यू, एक की होती है और एक वैल्यू होती है, और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं कॉलन साइन। सो राइट, तो कैसे करेंगे, लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एक नोटेशन तो ये हो गया। दूसरा, लिस्ट के लिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया था, टपल्स के लिए हमने कर्व ब्रैकेट यूज किया था, डिक्शनरी के लिए हम तीसरा ब्रैकेट यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं करली ब्रेसेस। दिस इज करली ब्रेसेस, राइट, दिस इज करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस। नाउ करली ब्रेसेस के अंदर ये मेरी की है, राज इसकी, और ये इसकी वैल्यू है। ये की है, की 1 वैल्यू 1, की 2 वैल्यू 2। तो की और वैल्यू को हम सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉलम। तो ये मैंने मार्क्स लिया है जिसमें राज के मार्क्स 40 हैं और अजय के मार्क्स 90 हैं, तो इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, यहाँ पे कॉलम का साइन लगता है डिक्शनरी को वैल्यूज और कीज को सेपरेट करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। से फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को इसमें एक और मार्क्स ऐड करना है, किसके मार्क्स ऐड करने हैं, कपिल के मार्क्स ऐड करने हैं 78, तो कैसे करूंगा मैं, आई विल राइट डाउन मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, कुछ भी चीज अपेंड करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू, की क्या है मेरा, कपिल, सिंगल कोट्स में कपिल, क्योंकि स्ट्रिंग है इसलिए सिंगल कोट्स में हमने लिखा है, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू होगी वो हमेशा सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में आएगी, राइट, और इक्वल टू 78, ये मेरी वैल्यू है। तो दिस इज की एंड दिस इज वैल्यू, ठीक है। देन मार्क्स, मैं देखता हूँ क्या वो ऐड हुआ है उसमें, यस, राज 40, अजय 90, और एक और इसमें की और वैल्यू ऐड हो गई, कपिल, जिसके मार्क्स 78 है, राइट। नाउ अगर मुझे इस मार्क्स में से राज के मार्क्स फाइंड आउट करने कितने हैं, दिखाई तो है मुझे आइडेंटिफाई करना है प्रोग्राम के अंदर, तो मैं डायरेक्टली मार्क्स विद इन स्क्वायर पैरेंथेसिस आई कैन राइट डाउन राज। सो जैसे ही मैंने राज किया इट विल शो द रिजल्ट 40। अगर मैं लिखता हूँ मार्क्स कपिल तो इट विल शो 78, मार्क्स अजय सो इट विल शो 90 एंड सो ऑन। देन मैं मार्क्स को डिलीट भी कर सकता हूँ, मेरे को अजय राज के जो मार्क्स हैं वो डिलीट कर रहे हैं, तो मैं क्या यूज करूंगा डिलीट करने के लिए, मैंने बताया था कमांड डेल, और मार्क्स राज के साथ आप यूज करेंगे, पहले यूज करेंगे तो क्या होगा, ये जो राज के मार्क्स और सी की वैल्यू सारी चली जाएगी। देखिए मार्क्स को मैं देख रहा हूँ, अब मेरे पास ये डिलीट राज का जो डेटा था, तो राज का डेटा जिसके मार्क्स 40 वो खत्म हो गया, केवल मेरे पास अब क्या रखा, अजय और कपिल, ठीक है। देन व्हाट वी हैव, अगर मुझे इसमें से की वैल्यू निकालनी है, यानी इस मार्क्स में से की वैल्यू निकालनी है राज या अजय, तो मैं लिखूंगा मार्क्स डॉट कीज ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, तो इट विल गिव अजय एंड कपिल फ्रॉम मार्क्स, ठीक है, क्योंकि हम राज डिलीट कर चुके से राज का डेटा शो नहीं कर रहा है। अगर मुझे वैल्यूज निकालनी है यानी 90 और 78, तो आई कैन राइट डाउन मार्क्स डॉट वैल्यूज, तो इट विल शो 40, 78। So it means we can directly write one statement, one line of instruction, and we'll get a result, which is not possible in programming languages like C or C++ or even in Python programming language. ठीक है, अब मेरे को ये चेक करना है कि राज एग्जिस्ट, अजय के मार्क्स हैं, अजय जो नाम का जो स्टूडेंट है वो मार्क्स में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो आई कैन डायरेक्टली राइट इट डाउन इन दिस फॉर्मेट, सिंगल कोट्स के अंदर मैं लिखा अजय इन मार्क्स, तो या तो वैल्यू ट्रू होगी या वैल्यू ट्रू नहीं होगी, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो वैल्यू इज ट्रू, यस अजय एग्जिस्ट। अगर मैं यहाँ लिखता राज इन मार्क्स, तो क्योंकि राज को हम लोग यहाँ पर डिलीट कर चुके हैं तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाती, फॉल्स हो जाती। इसका मतलब क्या है, वी कैन ऑल्सो चेक whether a particular key exists within a dictionary or not, right? This is to be there.
So that's all from my side. This is some sort of exercise for you. If you are able to perform this, so I can understood that you are able to grasp the thing easily, or I will help you out in this also. So पहला exercise क्या है? Write a program to interchange two numbers. यानी अगर मेरा A की वैल्यू 10 है और B की वैल्यू 20 है, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ? A की वैल्यू 20 शो करे और B की वैल्यू 10 शो करे। मेरे को कोई प्रोग्राम नहीं लिखना है, मैंने अभी असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपको बताए थे, उसी के थ्रू एक लाइन में कुछ होगा। आप कर सकते हैं इसको, अगर कर सकते हैं तो अपने टेक्स्ट बॉक्स पे प्लीज लिख दीजिए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। Let us start. Hello. If you like this video, then subscribe this channel. Click on bell icon. You can also write down what type of series you want in future. So let us start. Number 1, write a program to interchange two numbers. And second is write a program to reverse the string. अगर मैंने hello लिखा तो उसमें OLLEH लिखा हुआ आ जाए. Or write a program to print all three values of a list in three new variables. अगर A मेरे पास 10 है, B 20 है, C 30 है, A B C में स्टोर किया है, उसको मैं 3 डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर करूं, क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कैसे है, यू कैन राइट इट डाउन. चलिए चलते हैं. पहला, राइट अ प्रोग्राम टू इंटरचेंज टू नंबर्स. सॉल्यूशन, ए की वैल्यू 10 बोला मैंने, बी की वैल्यू 20 बोला, ठीक है. अब मैंने आपको असाइनमेंट ऑपरेटर बताया था, क्या था? वी कैन डायरेक्टली असाइन ए कॉमा बी टू बी कॉमा ए कॉमा बी विल असाइन टू बी कॉमा ए. देखिए क्या होगा. नाउ ए को प्रिंट कीजिए, यानी ए की वैल्यू बी में चली गई, अब बी की वैल्यू ए में चली गई. ए की लाइन में लिखा है मैंने. बी की वैल्यू अब क्या हो गई? ए की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास? ए की वैल्यू 10 थी, अब 20 हो गई. बी की वैल्यू क्या थी? 20 थी, अब क्या हो गई? 10 हो गई. अच्छा, यही काम मैं सी में करूंगा तो उसके लिए मेरे को एक टेम्परेरी वेरिएबल लेना पड़ेगा, उस टेम्परेरी वेरिएबल को असाइन करना पड़ेगा, प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, हेडर फाइल्स स्टार्ट करनी पड़ेंगी, वॉइड मेन लिखना पड़ेगा, इंटीजर्स डिफाइन करने पड़ेंगे, तब जाके मैं प्रोग्राम कर पाऊंगा. जबकि इसमें ऐसा नहीं है, मैंने डायरेक्टली वेरिएबल्स को सेम वेरिएबल्स में डिफरेंट टाइप्स में डिफाइन कर दिया. सो ए की वैल्यू क्या होगी? 10 और बी की वैल्यू 20. नाउ सेकंड था हमारा क्वेश्चन, सेकंड वाज टू रिवर्स द स्ट्रिंग. से हेलो, मेरा स्ट्रिंग है हेलो, इसको मेरे को प्रिंट करना है रिवर्स में, 0 से स्टार्ट हो और एच पे जाए. तो कुछ नहीं करना है मुझे, प्रिंट, ये मैंने मैसेज डबल कोट्स के अंदर लिखा है, रिवर्स ऑफ हेलो इज, आई विल राइट डाउन ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई विल यूज डबल कॉलन -1. डबल कॉलन -1 मीन इट विल स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, नॉट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. डबल कॉलन -1, so it will start from O, then it will display L, then it will display L, then E, and then H. ठीक है. So result will be O L L E H. Now third question क्या था हमारा? What was the third question? Write a program to print all three values of a list. यानी लिस्ट हमें पता है, लिस्ट किसमें होता है? स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होता है. इन 3 न्यू वेरिएबल्स में स्टोर करना है उसको. कैसे करेंगे? पहले एक लिस्ट डिफाइन करते हैं. लिस्ट है हमारे पास 1 2 3, राइट. कैसे पता चला ये लिस्ट है? आप टाइप ए लिख सकते हैं, जैसे आप टाइप ए लिखेंगे तो बता देगा लिस्ट है. और हमारे को पहचान भी हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पर क्या यूज किया है? स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है. ठीक है. नाउ ए को मैं डायरेक्टली असाइन कर सकता हूँ क्योंकि 3 वेरिएबल है, 3 डिफरेंट वेरिएबल्स में, x, y, z. अनपैक्ड जो मैंने बताया था स्ट्रिंग्स में, सेम लिस्ट में भी यूज हो सकता है. तो a विल बी असाइन टू x, y, z. नाउ प्रिंट x, y, z. So it will show result 1, 2, 3.
Okay. So that's all from my side. If you want to display it, you can show it like this. I'm using list is equal to 1, comma 2, comma 3. So I'm using 3 variables, x, comma y, comma z. I'll assign here. Now print x, comma y, comma z, and enter. That is not defined because I have taken L there. That's why it is given an error. X there. So that is there x, comma y, comma z is equal to L, then print x, comma y, comma z. So it will show 1, 2, and 3. Right? We can individually print also. X, 1, y, 2, z, it will show. So that's all from my side. I hope you have enjoyed this lecture. And if you have any doubts and query, you can ask me, or you can write down on a chat box or text box. And do subscribe this channel if you like this. We have some more series based on Python and any type of languages that you are interested in. You can just write it down in the text box. Thank you. Thank you so much.